Good morning, students. I, Brijesh Singh, Suraj Singh Children Academy, I strongly welcome in your political science class. Dear, as you know, examination date means test has been declared. Earliest date it has been declared from 9th August. Your examination is going to be expected. Definitely will be online test. Already syllabus has been allotted, 3 chapters have been allotted for your test. A lot of videos have been circulated. In today's session, a special topic which comes under category of a little bit complication to understand. A lot of students suggested me, asked me to take the proper revision of the fundamental right, because this topic is a little bit creating complication. So I want to describe in detail on board in slow speed, and also for your demand हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सअप. तो इसको हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करें और उसको आप समझने की कोशिश करेंगे. और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप लेके चलूंगा, क्योंकि आपकी पहली क्लास है और अभी 11th में आप आए हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप हिंदी को लेकर के प्लीज़ कंफर्टेबल जोन में ना जाएं, क्योंकि पूरा कैरियर सीबीएसई बोर्ड का पूरा कैरियर आगे चल करके सब कुछ इंग्लिश में ही आपको करना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है. तो वो कंफर्टेबल जोन में नहीं जाना है. हाँ, शुरुआती तौर पर थोड़ा सा असिस्ट करेंगे हम, जैसे जैसे आपकी इंग्लिश प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाती है, अच्छी तरीके से आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, तो हम लाइव क्लास में भी और वीडियो में भी आपको कोऑपरेशन देते रहेंगे. डियर, टुडेज सेशन 3 chapters have been allotted of what's the constitution. Constitution में 1946, 1949, from the first Constituent Assembly of the 1946, 9 दिसंबर 1946 में पहली संविधान सभा. उसके बाद पूरी जर्नी मैंने बताया था आपको कि 24 जनवरी 1950 लास्ट असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लास्ट मीटिंग, एंड फाइनली आई अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950 the Republic Day. Our Constitution has been implemented. Republic Day फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करने की कोशिश करेंगे. थोड़ा सा हम बैक चलने की कोशिश करेंगे. आई वांट टू जस्ट डिस्क्राइब सम लिटिल थिंग्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट and are connected to previous concept here, and take the proper complete revision whatever chapters have been taught. सिलेबस में आपने देखा है कि पहला चैप्टर आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, इंट्रोडक्शन, एंड द सेकंड चैप्टर विल बी राइट्स. राइट्स में हम आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर वीडियो भेजे हैं. आपने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, लेकिन आपकी डिमांड है तो हम इस पर फिर आज क्लास ले रहे हैं. और तीसरा आपका इलेक्शन. तो इसमें एक 60%, मोर देन 60% कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डिवोर्ड. Remaining part of the concept and contents will be discussed thoroughly in live class. You don't have to understand. The 3 chapters have been closed. After opening the school, we will take the live class. Already 3 chapters. Whatever your personal problems, whatever your complicated topics on particular topic, you are not going to maintain the proper understanding. I will take the through discussion and the cross question. Now, the first topic of the fundamental right. Now, Constitution. First chapter goes to you. Constitution. A little bit reference along with the revision of the examination also. I will try to revise all the previous chapters, more than 60% contents
content should be revised for the coming test, and definitely the mode of examination will be MCQs. All the questions will be MCQs. 25 questions will be allotted. If you are maintaining the proper command on every topic, definitely all the questions you must be able to try it. सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। आपको तीनों टॉपिक पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, इलेक्शन की बात करें, अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, टर्म्स कैसे होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका पावर कैसे होता है और उनके राइट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों पर अगर आप डीपली फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टैकल द एमसीक्यूज क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चंस आर very in comfortable zone, open study and huge section of all societies, like just the fundamental rights, constitution. These are very relevant topics and you can forward your concentration at highest level. So constitution from the journey, अगर हम बात करें from 9 December 1946 एक स्लाइटली रिवीजन देने की कोशिश हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। अभी पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन हैज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये पहला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हम एग्जामिनेशन का मोड आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली संविधान सभा को कब आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शंस जो आपके पास रहेंगे वो बड़ा कंफ्यूजन से रहता है। जैसे मेरी एग्जैक्ट ऑप्शन तो यही है, करेक्ट तो यही है 9 दिसंबर 1946, लेकिन जो 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें दे देगा 9 दिसंबर 1947, फिर 8 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1947. You will face a lot of complications if you don't have the exact date. You have to correlate the exam for your running topics. Exactly date and year. आपको अलग अलग लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात आएगी तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन जब आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे और उस पर कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं रहेगा, एग्जैक्टनेस आपके अंदर नहीं रहेगी, तो फिर वो दिक्कत आपको होगी और आपका माइंड जो है वो फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेगा। 9 दिसंबर 1946 है या 9 दिसंबर 1947 है या 8 दिसंबर 1946 है। तो जस्ट अवॉइडिंग सच थिंग्स, यू हैव टू टेक योर प्रॉपर स्टडी एंड इन सीरियस जोन। तो इस तरीके से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक क्वेश्चन ही बन जाएगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो देयर कैन बी 3 or 4 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको रिहर्सल दे दें, थोड़ा सा फीडबैक दे दें, फिर हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। लास्ट मीटिंग of Constituent Assembly, अब इसकी एग्जैक्ट डेट, दिस इज द 24 जनवरी 1946. Is that right? No, 24 January 1949. Now the second question, this can be asked that last meeting of the Constituent Assembly, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? You know it properly. 26 January, exact day on 26 January 1950, our Constitution has been implemented. But the last meeting of the 26 January 1949, adaptation of the Constitution, adaptation of Constitution
26 January 1950. This is the exact date, the implementation of the constitution. तो आप देख रहे हैं कि यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जस्ट कैरी आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसको हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा। लाइव क्लास में हम फिर डिटेल में आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो एग्जैक्टली 4 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है, 9 दिसंबर 1946। फिर सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट चांसेस टू बी आस्क्ड सेकंड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक फॉर द फॉर्मेट लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 January 1949 एंड एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 January 1950। टाइम की बात अगर करें, टाइम कितना टाइम इस पर लगा था? 2 years 11 months 18 days। अब ये फिगर आपको याद रखना है। ये फिगर अगर आप याद नहीं रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, एग्जैक्टली आपको लिखना है 2 years 11 months 18 days। ऑप्शंस आपके क्या रहेंगे? 3 years 10 months 19 days। एग्जैक्ट जब आप एक बार अंडरलाइन करके पढ़े रहेंगे तो सबसे पहले आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेट होगा एग्जैक्ट ऑप्शन पर। अगर एक बार आपके आंखों से कोई चीज गुजरा है, एक बार आपने उसको पढ़ा है, एग्जैक्टली जब वो ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपका माइंड का एक ट्रेमेंडस कंसंट्रेशन आपका वहीं आ जाएगा। पहला ऑप्शन दिया 2 years 11 months 18 days, तीसरा 3 years 11 months 18 days, फिर 2 years 9 months 18 days। एग्जैक्टली आप इस पर फोकस कर देंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से फॉर्मेट देने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि किस तरीके से ये चीजें आप करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे स्लाइटली पढ़ाई कर लेंगे तो वो दिक्कत होगा। यू विल फेस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स आपको आने वाले हैं। इसलिए एग्जैक्ट अंडरलाइन करके आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लाइन को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ द टॉपिक, सेकंड टॉपिक इज द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, how many questions, what kind of questions can be asked on the basis of the fundamental rights? Having passed the examination, the live class, I will take the complete discussion for 3 or 4 lectures. So try to understand a little bit the basic concept of the fundamental right. Fundamental rights. These rights are very important rights for the citizen of country. Definitely guardian of fundamental rights। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, who is the guardian of fundamental rights? तो आप यहां क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेंटेन? किस टाइप के क्वेश्चंस आप बन सकते हैं? जैसे आपने टॉपिक उठाया फंडामेंल राइट्स, तो आप सोचिए कि फंडामेंटल राइट्स पे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आपके दिमाग में एक चीज आना शुरू हो जाएगा, जैसे पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपको लगेगा नहीं वीक में 7 डेज होते हैं। उसी तरीके से आप एक एनालिसिस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कैन बी आस्क्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होता है कि फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है। इन द केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, for whom you can consult, any citizen can consult, that the Supreme Court। सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स का सेफगार्ड होता है।
आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ाएंगे आपको भी राइट टू लिबर्टी, वीडियोस में पहले बता चुके हैं, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एंटी एक्सप्लॉयटेशन। इस प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं उसमें अगर किसी प्रकार का कोई वायलेशन होता है, आपको लगता है कि ये वायलेट किया जा रहा है, हम इसको प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली you can consult to fundamental rights for violation of fundamental rights के साथ जो violation. I'm not talking about the lower court or high court also, but definitely you have been authorized to take the proper consultancy of the fundamental rights. The first question goes to you: who is the guardian of the fundamental right? Supreme Court. Supreme कोर्ट। आंसर तमाम क्वेश्चन दिए गए, ऑप्शन क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो अगर आपका अच्छे से कमांड नहीं तो फिर आपको बार बार दिमाग जाएगा कि प्रेसिडेंट आल्सो कैन बी, प्राइम मिनिस्टर आल्सो कैन बी, बट यू आर एग्जैक्ट टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली आप तुरंत आप इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंटली? 6। अब यहां आपको 7 ऑप्शन में दे देंगे, 8 दे देंगे, 5 दे देंगे, तो आपको क्रॉस करना है। ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल प्रेजेंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Property have been abolished in this year। अब right to property पहले आज 6 फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, इसको स्टैटिक वाले लेके चलेंगे हम, लेकिन पहले 7 थे और जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 44 में हुआ था, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1977 में, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत तेजी से बनता है कि देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। द 7th नंबर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन abolished with constitutional amendment। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी ये डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है। यहां से क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 44 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इससे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो धीरे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट वीक होने वाला है, 25 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, 25 क्वेश्चन में चैप्टर्स आपके लिए रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, फंडामेंटल राइट एंड इलेक्शन रहेंगे। तो किस प्रकार से आपको अपनी स्टडी को फॉरवर्ड करना है, किस तरीके से टॉपिक वाइज आप स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किस प्रकार के क्वेश्चन को जनरेट किया जा सकता है। आज की वीडियो मेरा टारगेट यही है कि क्वेश्चन कभी कभी हम उसको लाइटली पिकअप कर लेते हैं कि एमसीक्यू आएगा, देयर कैन बी 4 ऑप्शंस, सही हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप ऑनेस्टली से एग्जाम दें और आने वाले कमी एग्जामिनेशन का फॉर्मेट देखें, अगर हम सिविल की बात करें, यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं, इतना कंफ्यूजिंग होता है, इतना कंफ्यूजिंग होता है। अभी आप लोग एग्जामिनेशन में थोड़ा देख सकते हैं करके मामला ना हो, लेकिन जब आप आने वाले कंपटीशंस में आप देखेंगे 4 ऑप्शंस में कम से कम 2 में तो इतनी ज्यादा सिमिलरिटी रहती है, इतनी ज्यादा को सिमिलरिटीज रहती है, इतनी ज्यादा कि उनके कंटेंट्स को फिर वो डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहां आपको एक राइट अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा कि वास्तव में ये सही है, ये सही है। तो नीड्स डीपली स्टडी। इफ यू डोंट सर्वाइव द
don't survive your reading methods in depth zone, it will be very tough to justify which option is correct, which option is not correct. ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो अब इसमें पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है जिसको एबॉलिश कर दिया गया है। उसमें राइट टू इक्वालिटी दे देंगे, राइट टू फ्रीडम दे देंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे देंगे, और फिर उसमें दे देंगे राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब प्रॉपर्टी पर आपको टिक है। प्रेजेंटली दिस हैज नॉट बीन लिस्टेड, नाउ इट हैज बीन अबॉलिश्ड अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन को कहीं से फ्रेम किया जा सकता है जब पूरे टॉपिक पर आपका कमांड रहेगा, पूरे टॉपिक पर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपको अच्छे से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्वेश्चन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्वेश्चंस हो, तो 36 से 51 आर्टिकल्स लिए गए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स की बात करें, तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि एक तो रीडिंग करने के बाद आपका माइंड जो है ना स्लाइटली एकदम बिल्कुल जैसे होता है ना कि अब पापा का नंबर है, मम्मी का नंबर है, भाई का नंबर है, किसी फ्रेंड का नंबर है, वो जितनी बार आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डायल करते हैं, वो नंबर आपकी जबान पर आ जाता है। सभी बच्चों को पापा का नंबर याद रहता है, उसको सर्च करने की जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग सो मेनी टाइम्स, यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम, यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम सो मेनी टाइम्स, इट हैज बीन लाइक हैबिचुअल, ये हैबिचुअल हो गया। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है। जिस चीज को जितना ज्यादा बार लेके चलेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कोट करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें परमानेंट आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा और वो फ्रॉम टफेस्ट टू इजिएस्ट जोन में चला जाएगा। इस पर आप पूरा भी विश्वास कर सकते हैं। तो राइट टू, पहले की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी। अब इसके आर्टिकल्स को आप याद कर लीजिए, 14 to 18, 14 to 18 ये आर्टिकल्स आपको पूछा जा सकता है। राइट टू इक्वालिटी। सेकंड, राइट टू लिबर्टी या फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम की बात करें अगर तो इसमें आर्टिकल 19, 20, 21, 22, तो 19 से लेकर के 21, 19 to 21 यहां से कवर हो जाएगा। आप लर्न करेंगे, ये फिगर आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एक दो बार तीन बार पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं करेंगे। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी आप 14 तो फिर वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी हम बताएंगे 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है। एक स्लाइटली रिवीजन हम करा रहे हैं अभी एग्जामिनेशन में आपको। राइट टू इक्वालिटी ऑन दिस आर्टिकल कंसर्न्स किससे पूछा जाएगा? तो ये राइट टू फ्रीडम आपका हो गया 19 to 21। तीसरे में अगर हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 25 to 28। कोई दिक्कत आपको लर्न करने में। नंबर 4 अगर हम बात करें राइट टू एंटी एक्सप्लॉयटेशन। बच्चों को 14 वर्ष के कम बच्चों को किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने, किसी टी स्टॉल, किसी रेस्टोरेंट पे आप नहीं रख सकते हैं। ये बिल्कुल एक वैलिड रूल्स बनाया गया है। राइट टू एंटी एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एंटी एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल आपका आर्टिकल 24 हो जाएगा। तो देखो नंबर 5 की बात करें अगर
वन में राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 हो गया, राइट टू फ्रीडम 19 to 21 हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, सॉरी राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक वर्ड यहाँ थोड़ा सा लिखना जरूरी था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 28 हो गया, और राइट एंटी डोनेशन 24 हो गया, और इसके बाद एक आर्टिकल आपका बनता है राइट टू माइनॉरिटीज, जो संस्थाएं चलती हैं उसका आपका आर्टिकल 30, आपका आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज कॉलेज इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको सर्वाइव किए जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट नंबर हो जाता है कि राइट टू रेमेडीज, वन ऑफ द मोस्ट important the legacy in under the fundamental rights, you can nominate the right to remedies, उपचारात्मक, संविधान की आत्मा कही जाती है। दिस इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर नॉमिनेटेड इन आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। अब इसमें से क्वेश्चन पूछने में आपको अगर एक दो बार 3 बार आप पढ़ लेंगे राइट टू एंटी एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन 9 दिसंबर 1947 1 3 सेकंड 2 3 अगर आपने ले लिया रेडी, तो किसी भी टॉपिक पर आपको कुल मिला जुला करके ये कहना है कि आपको बहुत ही गहराई से स्टडी करना है, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है। आपको मार्कर ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, चीजों को अंडरलाइन करिए, चीजों को बॉक्स में रखिए, फिर उन्हीं चीजों को आप एमसीक्यूज में कन्वर्ट करिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर जो एग्जाम होगा आपका वो भी एमसीक्यूज होगा। तो कुल मिलाकर के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि एमसीक्यूज पैटर्न को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, उसको स्लाइटली पिकअप करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्लास के थ्रू हम रिविजन्स लेते रहेंगे, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आपसे करवाते रहेंगे जब तक एग्जामिनेशन अगले वीक में होता है। तो ये हमने एक फॉर्मेट आपकी डिमांड पर बताया कि हिंदी में आपने डिमांड किया था कि मैक्सिमम थोड़ा सा हिंदी कन्वर्सेशन करके आप बता दीजिए। तो हिंदी बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक नॉर्म्स होता है सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड का एक नॉर्म्स होता है, ऑल द थिंग्स मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश मीडियम, ऑल द कंटेंट्स शुड बी रजिस्टर्ड इन इंग्लिश। तो जो अभी से हम नहीं बोलेंगे और आपसे ट्रायल नहीं करवाएंगे तो फिर कैसे आपकी हैबिट? आप तो हमेशा डिफेंस में करते आए हैं, डिफेंस में तो करते चले आए 6 7 8 9 10 कि आज थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही है, उतना ज्यादा कमांड आप नहीं कर पा रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पा रहा है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म 11th एंड 12th, जहां से आप अपनी जर्नी को बहुत गंभीरता से, कि लाइफ में कभी न कभी आपको गंभीर होना पड़ता है, हर वक्त आप मौज मस्ती के मूड में नहीं रह सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत राइट प्लेटफॉर्म है 11th स्टैंडर्ड, जहां से आपको बहुत एग्जैक्ट सीरियस होना है। यहाँ से 5-6 इयर्स आपकी जिंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम प्रीशियस रहने वाले हैं। अगर यहाँ हार्ड वर्क कर देते हैं, खुद से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ड्यूटीफुल हो जाते हैं, तो बाकी रिजल्ट आप गॉड पर छोड़ दीजिए, बाकी रिजल्ट आप गॉड पर छोड़ दीजिए। लेकिन 4-5 इयर्स एग्जैक्टली अगर आप हार्ड वर्क कर देते हैं, डेडिकेशन करते हैं, तो डे बाय डे आपका जो है टारगेट आपके करीब आता चला जाएगा। नहीं तो फिर वही क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि जितना ही स्लो अभी आप चलेंगे शुरुआती एट द टाइम ऑफ बिगनिंग, लास्ट में आपको हाई रन रेट, समझ सकते हैं ना? हाई रन रेट का मतलब होता है कि आप अपने रिदम को खो देंगे, मेंटल फ्रस्ट्रेशन आपको जनरेट होगा, टाइम कम रहेगा, पास्ट की चीजों को कमेंट करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, फिर वो चीजें आपको लगेगा कि और लोगों के कंपैरिजन में हम बहुत पीछे हैं। सो टुडे सेशन में हमने आपको यही बताया कि एक स्लाइडली आपको गाइड करने की कोशिश किया कि कैसे आप इस चीजों को पढ़ेंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे, आप हाइलाइटर्स लेंगे,
और उसका नोट्स बनाएंगे, 4 ऑप्शंस वगैरह आप देंगे और फिर इसके बाद बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एक ही चीज अगर आपके दिमाग से आपके आंखों के सामने से कई बार गुजरेगा तो वो चीजें आपके दिमाग में 100% लॉक हो जाएंगी। 2 बार आपने पढ़ा राइट टू रेमेडीज, संविधान उपचारात्मक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो जैसे आर्टिकल 32 देखेंगे आप नीट में राइट टू रेमेडीज करेंगे, आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, सारी चीजें आपके दिमाग में। बस जरूरत है आपको कंप्लीट डेडिकेशन और अपने आप को रिजर्व बेंच में रह करके किसी चीज को पाने की बेचैनी, और किसी चीज को पाने की और करने की अगर बेचैनी है तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल जोन में आप जाएंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और हम क्लास के थ्रू आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चंस देते रहेंगे, कराते रहेंगे, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीक आपका एग्जामिनेशन होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।